World War II, a lot of investment went into this basic sciences. And we created the positions of basic health scientists and something which you will later on know as academic physicians or academic clinicians. So we have actually clinicians who work with the patients and in the wards, and you have academic clinicians. So this happened sometime around 1940. Also there was a lot of shift in the 70s towards procedures and technology, जो हम आज भी देखते हैं. We are trying to cure any and everything with technology. अगर हमारे पास कोई cardiac patient आता है, we straight away want to put in stents, or we want to go in for bypass surgery, not even realizing whether how many years does he has in front of him, क्योंकि we don't have the confidence to explain the prognosis. इसीलिए हम अनड्यू एक्सपेक्टेशन देते हैं पेशेंट को कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. नाउ सपोज किसी ने कोई बाईपास किया, उस बाईपास के बाद भी तो डेथ हो सकती है. इट्स अ मेजर कार्डियक प्रोसीजर. डू वी एक्सप्लेन इट? सिंपली गेटिंग अ कंसेंट फॉर्म साइंड डज नॉट मैटर. इट डजंट डू एनीथिंग. सो इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा क्या नुकसान हुआ कि हमारा थ्योरेटिकल करिकुलम बढ़ता चला गया. मुझे नहीं पता आप लोग अवेयर हो नहीं, बट people who are dealing with medical education of the medical colleges, they realize that the amount of curriculum that is there for the MBBS student today is huge. And for that matter, even schools में जो आपका curriculum था, जो आप पढ़ के आए हो, that is huge. I'm sure you all have read trigonometry. अभी यूज़ कर रहे हो? नहीं यूज़ कर रहे ना? कोई कहीं यूज़ करते हो? मेडिसिन में, नर्सिंग में नहीं यूज़ करते. So we need to really focus on what we are teaching our people. Basic mathematics everybody needs to learn, but advanced mathematics only those people need to learn who want to go into basic sciences, that too physics and mathematics. So कहीं हमारा education system गलत चला गया है. Same is with medical education. So ये जो education system है went out of the hand of the clinical people into academic or basic scientists. This is where the problem arose in medical education. This led to a complete erosion in quality of clinical training and it continues unabated. आगे की स्लाइड्स में बताऊंगा, पर आजकल ये बातें नहीं होती कि residents should have 48 hours. ठीक है? And if you write somewhere on the Facebook or Twitter कि hours नहीं होने चाहिए, you will get all negative posts from so many associations, so many people who say if you have learnt it the wrong way, why should we learn it the wrong way? Right or wrong way नहीं है. आप कार चलाते हो? कितने लोग ड्राइविंग करते हो? हाउ मेनी ऑफ यू ड्राइव? कौन सी किताब पढ़ के कार चलाना सीखा बेटा? जब सड़क पे चलाई कर तब चलाना आया ना. तो आप मेडिसिन कैसे सीख लोगे एग्जाम पार के थ्योरी पढ़ के? जब तक पेशेंट के साथ, पेशेंट के पास बैठोगे नहीं 24 घंटे, मेडिसिन कैसे आएगी? बाकी स्किल्स तो हम सीखते हैं परफॉर्म करके. एनीबॉडी हू प्लेज म्यूजिक? एनी इंस्ट्रूमेंट? कोई प्ले करता है? गिटार प्ले करते हो? गिटार कौन सी किताब से पढ़ के सीखा? नहीं. सोचने वाली बात है, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं. So it was the academic clinicians or the academicians who started raising issue of restriction of working hours for residents to enable increased theoretical learning. आपको टाइम चाहिए थ्योरी पढ़ने के लिए, आपको टाइम चाहिए एग्जाम में अपीयर होने के लिए. सो उन्होंने कहा कि आर्ट्स बनने चाहिए. दूसरी चीज़ ये हुई कि मेजर शिफ्ट टू सुपर स्पेशलिटी. जैसे मैंने बोला, MBBS की आपने खुद ही वैल्यू ख़त्म कर दी, क्योंकि मुझे MD करना है और MD के बाद भी मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी, मुझे अब DM करना है, MCH करना है. सो आप अपना स्ट्रेस लेवल अपने आप ही बढ़ा रहे हो. इसकी क्या गारंटी है कि आप DM करने के बाद ही डॉक्टर बनोगे? बताओ मुझे. और DM भी करोगे, उसके बाद आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है? आपको पता है हमारी DM की, MCH की कितनी सीट्स खाली जाती हैं? मोर देन 1000, ऑलमोस्ट 2000 सीट्स गो वेकेंट बिकॉज पीपल डोंट नो, दे आर नॉट अवेयर व्हाट टू डू, क्या हमें करना है. इससे क्या हुआ? इंटरनल मेडिसिन वार्ड श्रिंक करता गया. इंटरनल मेडिसिन वॉज द नर्सरी. इंटरनल मेडिसिन वॉज द नर्सरी टू एवरी स्पेशलिटी. आप बेसिक्स वहीं पर सीखते हो. फ्लूइड मैनेजमेंट क्या होना है, आपको प्रिस्क्रिप्शंस कैसे लिखने हैं, आपको बेसिक मैनेजमेंट कैसे करना है, वो वहीं पर आता है. वो आपको कोई स्पेशलिटी या सुपर स्पेशलिटी नहीं सिखाती है. और आजकल वहाँ पे पेशेंट्स ही नहीं होते. पेशेंट्स क्या, रेजिडेंट्स भी नहीं मिलते. डू यू गेट सीनियर रेजिडेंट्स, एनफ सीनियर रेजिडेंट्स इन मेडिसिन? You don't get senior residents for medicine and surgery. And senior residents are the cornerstone of any hospital.
If you don't have good senior residents, you will never have a good hospital. As a senior resident, I used to take evening classes for my postgraduates, for my graduates. They don't happen anymore. There are no evening classes taken by senior residents. So how come you will get first-hand teaching? टीचिंग सिर्फ यहाँ पे खड़े होकर नहीं होती, बेड साइड टीचिंग होती है जो ज़रूरत होती है, कोई गाइडेंस करने वाला होना चाहिए. सो दूसरा क्या हुआ, जैसे जैसे लाइफ स्पैन बढ़ने लगा, लाइफ स्पैन बढ़ने लगा, so you have patients